Good morning, my dear students. Let's continue our chapter Refraction and Dispersion of Light with the help of new topic Human Eye. Human eye. What is human eye? It is a natural optical instrument, my dear students, which we can use or that enable us. This natural optical instrument enable us to see things around us. Things, or you can say objects. We have a number of objects present in our earth and we can easily see them with the help of this natural optical instrument. It is present in pair because we have two eyes, तो ये हम pairs में present है, and with the help of this instrument we can form the images of object that is present outside the eyes, that is present around us. A lot of objects present around us. All the images of all the objects formed in the eyes, there is a special screen called retina. Okay, so in this topic we're going to discuss the structure of eye, we're going to discuss the components of eye and their functions, कि जिन components से मिलके एक ह्यूमन आई बनती हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं एंड हाउ दे मेक और हाउ दे फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Let's see. Human eye is a spherical ball. It is an eyeball. The shape is of a ball. And the front portion of this ball consists of a transparent surface called cornea. This is the first component of our spherical eye, cornea. What is the function of cornea? It protects our eyes. The front portion, the beginning portion of our eyes is cornea, and it protects the eye from a dust or you can say mechanical injury, and it always, or you can say it can help in focusing of image की focusing में भी help करता है और आपकी eyes को भी protect करता है. It is a transparent medium. Now behind the cornea there is a smooth muscle called iris. Iris is a smooth muscle that gives कलर टू योर आई. आपकी आईज का क्या कलर है? जो डार्क कलर, इससे अभी जो ब्लैक कलर के जो आपको पोर्शन दिखाई दे रही है, स्फेरिकल, ये सर्कुलर पोर्शन ब्लैक कलर के, ये है क्या? व्हाट आर दीज? दिस इज आइरिस. इफ दिस इज अ आई, द स्फेरिकल और द सर्कुलर पोर्शन इज आइरिस, एंड इनसाइड द आइरिस देयर इज अनदर पोर्शन कॉल्ड pupil. Pupil is a hole that is present in the iris, and the size of this hole depend on the iris. What I told you, iris is a smooth muscle, and what is the function of muscles? It can change its shape. जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ये तो हमारे काम मसल्स का होता है. हमारी स्किन में नीचे मसल्स होती हैं, दे कैन एक्सपैंड, वो एक्सपैंड भी हो जाती हैं और रिलैक्स भी करती हैं. तो आइरिस इज अ मसल दैट कैन एक्सपैंड एंड रिलैक्स. और जो चीज़ एक्सपैंड हो रही हो, रिलैक्स हो रही हो, और उसके बीच में जो होल है तो उसके ऊपर भी डिफरेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है. तो आइरिस क्या करता है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल? प्यूपिल का क्या फंक्शन है? हमें आइरिस का पता चल गया. जो आइरिस है, आइरिस गिव कलर टू द आई. हमारी आई को कलर देती हैं. जो यूएसए के पीपल्स हैं उनकी ब्लू कलर की आईज होती हैं, इंडियंस हैं ब्लैक कलर की आईज होती हैं. जो वो पूरी आई के कलर की बात नहीं करते हैं, आइरिस के कलर की बात करते हैं कि आइरिस का कलर क्या है. इंडियंस हैं, मैक्सिमम पीपल्स आपको कैसे मिलते हैं? उनकी आइरिस का कलर ब्लैक होता है, और जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी आइज का कलर ब्लू होता है. आइरिस का कलर होता है, वो आई का कलर नहीं होता, आइरिस का कलर होता है. तो दैट गिव कलर टू द आई. एंड नंबर 2, it can change the size of pupil. Pupil के साइज को चेंज कर देती है. What is pupil? Pupil is a hole that allows the entry of light in the eyes. So with the help of these hole, जो रास्ता है, यहां से लाइट एंटर होती है आपकी आईज के अंदर. तो what is the gate? What is the name of that gate? The name of that gate is pupil. Whenever we are present in a very bright room, जहाँ पर रोशनी बहुत होती है, the size of pupil is very small there. जो साइज होगा pupil का वो काफ़ी स्मॉल होगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट जाएगी तो it can harm your eye.
बट व्हेन यू प्रेजेंट इन अ डार्क रूम, जब हम डार्क रूम में प्रेजेंट होते हैं, द साइज ऑफ दिस प्यूपल इज वेरी लार्ज, जो साइज है वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिकॉज वी नीड मोर लाइट, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपकी लाइट क्या, आपकी आईज क्या करती है, आपकी आइरिस क्या करती हैं, आइरिस प्यूपल की साइज को इंक्रीज कर देती है, सो यू कैन इजिली सी द थिंग्स, ठीक है ना। चलिए, सो वी हैव डन कॉर्निया, वी हैव डन प्यूपिल, वी हैव डन आइरिस, आइरिस इज स्मूथ मसल। बिहाइंड द आइरिस और बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज अ लेंस called converging lens is present. This is the converging lens. Converging lens is convex lens. It is a jelly-like substance. It is a jelly-like substance that can change the thickness. जो अपनी thickness को change कर सकता हो। क्या आपके जो convex lens हैं, जो हमारे hands में convex lens होते हैं, जो market में convex lens मिलते हैं, क्या वो भी अपनी thickness को change कर सकते हैं? No, they cannot change their thickness. But only the human lens, only the human converging lens can change its thickness. वो मोटा भी हो सकता है और वो thin भी हो सकता है. You can see here. This is the only capability that is present in humans, जो हमारे lenses में, और किसी lens के पास ये capability नहीं है. Human lens के पास ये capability है that can change its size, that helps in focusing, जो focusing में help करता है. तो इसलिए हमेशा जो इमेज है always form on retina. क्वेश्चन में आता है why always image formed on retina? रेटिना पे ही क्यों बनती है? This is retina. ये रेटिना है, ये वो इमेज है जहां पर रियल इमेज बनती है, जहां पर इमेज रेज एक्चुअली मीट होती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंसेज. ये वो सरफेस है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां पर एंड होती है, दिस. तो वो कहते हैं कि ऐसा वो यहां पर क्यों नहीं मिलती है? वो बड़ी भी हो सकती है, वो आगे भी आ सकती है, यहां मिल सकती है, यहां पर मिल सकती है, बट वो व्हाई दे ऑलवेज मीट ऑन रेटिना, और रेटिना के ऊपर ही क्यों पड़ती है हमेशा आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस? द आंसर इज बिकॉज आवर आई लेंस कैन चेंज इट्स पोजिशन, सो वी कैन इजिली चेंज द फोकस. हम फोकस को भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऑलवेज जो आपकी इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही बनेगी बच्चों. नेक्स्ट केस, आफ्टर दैट वी हैव डन कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस. सो व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स, that can change the thickness of lens? क्या लेंस अपने आप ही पोजीशन को, अपनी थिकनेस को चेंज कर रहा है, और इज देयर एनीथिंग प्रेजेंट? यस, देयर इज अ मसल्स कॉल्ड सिलेरी मसल्स. सिलेरी मसल्स आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ दीज लेंसेज. अब लेंस है तो यहां पर जो दोनों पॉइंट्स है यहां पर प्रेजेंट है सिलेरी मसल्स. These ciliary muscles, what is the function of muscles? that can relax and expand. जो रिलैक्स होती है एक्सपेंड करती है. तो जब ये रिलैक्स करती हैं तो लेंस का साइज इंक्रीज होता है, और जब ये एक्सपैंड होती हैं तो क्या करती हैं? लेंस का साइज काफी कम कर देती हैं. सो विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स लेंस कैन चेंज इट्स थिकनेस. इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट है एंड इट्स मेड अप ऑफ जेल लाइक सब्सटेंस. नेक्स्ट, आफ्टर दैट विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर. व्हाट आर विट्रस ह्यूमर? विट्रस ह्यूमर क्या है? इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस that is present in the eye wall. जो आपको पूरा ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये पूरा सरफेस, पूरा एरिया, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर? इट गिव शेप, इट गिव स्फेरिकल शेप टू द आई. जो आई को स्फेरिकल शेप देता हो उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं. इमेजिन करो माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर विट्रस ह्यूमर ना हो, व्हाट विल हैपन? तो आई बॉल नहीं होगी, वो स्क्वीज हो जाएगी, इट विल स्क्वीज, शेप नहीं आएगी. एंड अनदर लिक्विड इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द आइरिस. आइरिस और आपके लेंस के बीच में भी लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. उसका भी सेम फंक्शन है कि वो लेंस को आइरिस से टच नहीं होने देते, जिससे एब्रेशंस नहीं आते, रैशेस नहीं आते लेंस के ऊपर, और वो हमेशा क्लीन रहता है, क्रिस्टल क्लियर. ठीक है ना? What is the function of retina? This is the surface where images are formed. अगर रेज आ रही हैं तो वो इमेज लेंस से पास होगी, क्या होगी? डेविएट हो जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगी. आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट रेटिना. कहां पर मिलेंगी? रेटिना मिलेंगी. रेटिना पे इमेजेस बनती हैं, और इमेज कैसी होंगी? वो स्मॉल होंगी. द इमेज फॉर्म्ड और रेटिना इज ऑलवेज स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड. हमेशा इन्वर्टेड होंगी, उल्टी होंगी. आफ्टर दैट दिस रेटिना सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और हमारे ब्रेन को मैसेज सेंड कर देती हैं, और ब्रेन रिकॉर्ड कर लेता है जो हम देखते हैं. अगर हम मूवी देखते हैं तो कई टाइम तक हमें याद रहती है. मूवी की जो इमेजेस हैं वो कहाँ बनेंगी? रेटिना पे. और रेटिना किसको सेंड करेगी? ब्रेन को, और हम उसको अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लेंगे, सेव कर लेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस.
So this is the function of all components that makes human eye. This is optic nerve. What is optic nerve? Optic nerve is a tissue or muscles that transfer messages or that transfer the image of object to the brain. Okay. But my dear students, if we know eye, we should know the defects of eye. हमें eye के defects पता होने चाहिए. जब आपका लेंस इतना प्रॉपर वर्क करता है तो हमें स्पेक्टिकल्स क्यों लगते हैं, हम चश्मे क्यों लग जाते हैं? What is the reason behind it? That topic is defect of eyes. Eyes में defect आ जाता है. So next topic is defect of eyes. But before we're going to cover a small topic, that is accommodation of eye. If we know accommodation of eye, then we can easily understand the defects of eye. Yes, students. Next topic is accommodation of eye. Accommodation of eye is the capability of an eye to change its focal length so that it can clearly see the images of object in a certain range. What is the meaning of this definition? Means the capability of eye so that it can change the focal length of its lens. The lens which is present in the eye, this is the capability of a lens that it can change the focal length. It can change the thickness. तो आईज की लेंस अगर अपनी थिकनेस को चेंज करते हैं, वाई, जिससे वो इमेजेस जो बन रही हैं रेटिना पे वो क्लियरली बने, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को विदाउट एनी ब्लर वो इजीली देख सकती हैं. इस कैपेबिलिटी को हम अपनी आईज की अकोमोडेशन बोलते हैं. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ आवर आई, or you can say the lens of our eye, so that it can change the thickness with the help of which we can easily see the objects. फोकल लेंथ अगर चेंज होगी तो हम हर ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो दूर हो या पास हो, हर बार उसको हम क्लियरली देखेंगे. ऐसे नहीं कि हमें फोकस हमें खुद से चेंज करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. कौन करते हैं? सिलेरी मसल्स करते हैं, हमारे लेंस की थिकनेस को चेंज करते हैं. सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द थिकनेस एंड द फोकल लेंथ? Yes, there is a relation. First, we're going to study the relation. My dear students, you should know whenever the lens is thin, जब lens thin होगा, focal length always large, or you can say high. जब lens पतला होगा, thin होगा, तो focal length ज़्यादा होगी, maximum होगी. और जब lens thick होगा, whenever concave lens is thick, the focal length is small. कैसी होगी focal length? Small. So what is the relation between thickness of lens and focal length? It is inversely proportional. Inversely proportional. This is a symbol of inversely proportional. Means if thickness of lens is high, focal length is low. If thickness of lens is very low, focal length is very high. Means opposite. So this is the relation between thickness of lens and the focal length, you can say. So here we can easily understand the accommodation of eye. We're going to discuss the definition of accommodation of eye. It is the capability of eye to change its focal length so that it can easily or clearly see the objects within a certain range. किसी भी range, एक certain range है. And what is the certain range? वो range क्या है जहां पर हमारी eyes किसी भी object को clearly देखती हैं? That range is between 25 centimeter to infinity. So whenever we see the objects between this range, we can see clear image of that object. हम उस ऑब्जेक्ट की हमेशा we always see the clear image. हम हमेशा clear image ही देखेंगे. There is no blur of that image whenever the object is present between this range. How this is possible? This is possible with the help of our lens, with the help of our ciliary muscles that can change the thickness of lens, and ultimately thickness will depend on the focal length. और जब focal length change होगी तो object हमेशा retina पे बनेगा. So this is the accommodation of eye. What is 25 centimeter? This is the near point of our eye. This is the near point of our eye. What is infinity? Infinity is the far point of our eye. What is near point and far point? It is the point where our eye can clearly see the
images of an object, वो लीस्ट डिस्टेंस, इट इज द लीस्ट डिस्टेंस, वो कम से कम वो डिस्टेंस जहां पर हमारी आईज किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती हो, दैट डिस्टेंस, दैट पॉइंट इज नियर पॉइंट एंड द आंसर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लीस्ट है, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे हमें हैजी ऑब्जेक्ट दिखते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर यहां तक होती हैं तो यहां तक तो मुझे मार्कर क्लियर दिखता है, उससे आगे भी 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक मुझे क्लियर दिखाई देगा, बट अगर मैं इसको पास कर लूं तो आई कैन नॉट सी दिस मार्कर क्लियरली। ओके, so this is the near point, the least distance, the least point at which our eye can see the objects clearly. This is 25 centimeter. And the far point, the maximum distance where our eye can see the objects clearly is called far point. The answer is infinity. वो infinity है। तो चाहे हम मून हो, सन हो, हम उनको देख सकते हैं क्लियरली विदाउट एनी ब्लर। बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन ब्लर इमेज नहीं होगी। ठीक है ना? So this is the accommodation of eye. I hope you understand very well. Now what happens when our ciliary muscles does not work properly? जब हमारी ciliary muscles अच्छा प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, इनबैलेंस हो जाती है, एरर्स आ जाते हैं उसके अंदर, जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना नहीं होती है, तो उस केस में डिफेक्ट्स आते हैं। वो डिफेक्ट्स होते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और दूसरा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, वो डिफेक्ट्स की वजह से लगाते हैं जब हमारे जो सिलेरी मसल्स हैं इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ सिलेरी मसल्स? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट कैन चेंज द थिकनेस ऑफ लेंस। ये होता कब है? जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो क्या होगा? जब भी सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो जो आपका कनकेव लेंस है वो थिन हो जाएगा। रिलैक्स होंगी, इफ इट इज रिलैक्स द कनकेव लेंस विल बी एट इट्स थिनेस्ट पोजीशन, अपनी थिनेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, यानी पतला होगा, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, concave lens changes its thickness and it becomes maximum, it achieve maximum thickness, और maximum thickness को achieve कर लेगा, and focal length will reduce because it is inversely proportional, और focal length कम हो जाएगी। But if our ciliary muscles does not relax and contract properly, what will happen? The answer is myopia and hypermetropia, यानी images रेटिना के ऊपर नहीं पड़ेंगी, या तो रेटिना, इमेजिन करो दिस इज आई, मैंने आई बनाई है, दिस इज रेटिना, ये रेटिना है, तो उस केस में क्या होगा? या तो इमेजेस रेटिना से पहले बन जाएंगी यहां पर, या वो रेटिना के पीछे बनेंगी बैक साइड में, रेटिना के ऊपर नहीं बनेंगी। इमेजेस रेटिना के ऊपर नहीं बनती हैं, या तो वो बिफोर रेटिना या आफ्टर रेटिना। तो ऐसे केसेस में हमें इमेजेस क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, इट बिकम हैजी हो जाती हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो हमारी सिलेरी मसल्स थी वो लेंस को प्रॉपर थिन या थिक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिस्टर्ब हो गई, और जब फोकल लेंथ डिस्टर्ब हुई तो इमेजेस रेटिना के ऊपर ना बन के या तो उससे पहले या बाद में बन गई। इसलिए इमेज आपको या तो छोटी नजर आएंगी, या बहुत बड़ी नजर आएंगी, या ब्लर नजर आएंगी। इसलिए हम स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं जिससे हम बैलेंस कर पाए अपनी फोकल लेंथ को। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विल बी इन द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट केस इज मायोपिया। इफ सिलेरी मसल्स डज नॉट रिलैक्स प्रॉपरली इन ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस में सिलेरी मसल्स प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होती हैं, अगर प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होंगी तो वो थिन नहीं हो पाएगा। क्या? लेंस, द लेंस ऑफ ह्यूमन आई विल नॉट बिकम थिन, और जो थिन नहीं होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, और फोकल लेंथ अगर इंक्रीज नहीं होगी तो जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे रेटिना के ऊपर बनेंगे? क्योंकि फोकल लेंथ तो क्या हो गई? कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो जिसकी वजह से जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मून, सन,
वो हम आई से देखते तो है बट वो हमें ब्लर नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर नहीं बनती, कहां बनती है? जस्ट बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले। ये देखो इधर यहां बन रही है, बननी थी यहां पर रेटिना के ऊपर इधर, बट इट विल फॉर्म ऑन द बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बनती है। इसलिए हमें जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर विजिबल नहीं होते, बट वी कैन इजिली सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इफ वी सफर फ्रॉम मायोपिया। तो इसलिए जो मायोपिया के पेशेंट्स हैं जिनको कनकेव लेंस लगता है उनको इंप्रूव करने के लिए, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि वो दूर का नहीं देख पाते, उनको पास का दिखता है। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्लैक बोर्ड में कुछ भी लिखते हैं तो विजिबल नहीं होता उनको। क्यों? बिकॉज दे सफर फ्रॉम मायोपिया। तो जो इमेजेस बनती हैं, ब्लैक बोर्ड की जो इमेज बन रही है वो जस्ट बिफोर रेटिना बनती है, जिससे उनको वर्ड्स नहीं दिखाई देते। एंड दिस कंडीशन, दिस मायोपिया डिफेक्ट्स कैन बी इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। इफ वी यूज कनकेव लेंस, अगर हम कनकेव लेंस यूज करते हैं तो क्या होता है? इमेजेस रेटिना के ऊपर बनेंगी लाइक दिस, एंड वी कैन इजीली सी द इमेजेस। इसलिए जितने मायोपिक पेशेंट हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, उनको हमेशा कनकेव लेंस लगता है। उनके स्पेक्टेकल्स में, उनके चश्मे में कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा। ओके। नंबर 2, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर जो इमेजेस हैं वो आफ्टर रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, बियॉन्ड रेटिना। दिस इज रेटिना। जो लाइट्स आ रही हैं वो रेटिना के पीछे बनती है। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू द डिफेक्ट्स ऑफ सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, इट डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी तो वो थिक नहीं हो पाएंगी, और अगर थिक नहीं हो पाएंगी तो अपनी फोकल लेंथ को कम नहीं कर पाती, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, उसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और फोकल लेंथ जब बढ़ जाएगी तो जो इमेजेस है वो रेटिना के ऊपर ना बन के उसके पीछे बनेंगी, फोकस पे। बिकॉज वी नो व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड फोकस। तो फोकस पीछे होता है, तो इसलिए जो इमेज है वो हैजी नजर आती है, थोड़ी सी बड़ी नजर आती है और धुंधली नजर आती है, ब्लर नजर आती है। कैन वी इंप्रूव दिस डिफेक्ट? यस, वी कैन इंप्रूव दिस डिफेक्ट विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। ऐसी नॉर्मल जो दिस हाइपरमेट्रोपिया जो है डिसीज है, ये डिफेक्ट है, ये ओल्डर पेशेंट्स में ज़्यादा आती है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनकी मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और स्ट्रांग नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो डिफेक्ट्स आएंगे, जिससे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनको कैसा स्पेक्टिकल्स लगता है? उनको कन्वेक्स लेंस वाला स्पेक्टिकल्स लगता है, जिसकी हेल्प से जो इमेज है वो कहां पर बनती है? वो रेटिना के ऊपर बनती है। तो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। ये 2 केसेस थे यहां पर। So this is all about eye and the defects of eye. We have completed this chapter, and in the next videos you will see the some interesting topics of next chapter, that is sound. तब तक के लिए thank you so much. Bye.